Namaste all, this is JV Nanchali Parekh from Jyoti Vidyapeeth Vivens University. I am working here as an assistant professor in the Department of Fashion Design and Fine Arts. In the previous lecture, we were discussing about the fundamental of design subject, in which we have discussed the various elements of design which were a part of Unit 1. Now we are working on Unit 2, where we are discussing a part of element of design only, which is texture. And in the previous lecture, we have described what is texture about and where it is being used, how we can see it, and where all it is being implied in the graphic sector or the fashion sector. Now today what we are going to do is we are going to further study whichever topics are left, and we'll try to cover most of them which is included in texture part. Now coming to the if we first we should recall what we have done in the previous session. So basically we have discussed texture kya hai. It is an element of art. Texture is a surface quality, anything that you can feel after touching a surface or anything that is around you. You can just see it and feel some kind of texture, feel some kind of surface. It is called a texture. Whereas there are two types of texture, which is actual and simulated. Actuals are the one which are naturally made, that are not made by men, that are not artificial, whereas there is simulated, which is an artificial texture. Both of them are mainly used so that different textures are used so that you can create a visual imagination or create something that is not there in the world, but you can just see it through adding colors and using softwares and many other things like that, many other tools like that, where we have discussed that there are different type of texture. If you see the branch of a tree, you could see all the texture that are there. Coming to the very next part, you could feel the smoothness or roughness of a texture. Depends how your finger feels after touching that surface. After that, we have discussed about the various texture, how it is being made, wherever the light is present, how you can analyze or how can you portray where to show the light and with which color you can show the light. Like wherever you want to put a reflection or put a light, you will use a white color, whereas if you want to put something dark or you want to show a shadow or a overcast, you would use the darkest color of the particular surface area. Means if you are using a gray, then darkest gray would be an option. If you are using a brown, you would use the darkest brown shades, and then you can create anything like that. After that comes type of texture. We have discussed there were three type of texture: audible, visual and tactile. Which one is audible? Anything when you touch a surface, what kind of sound you hear is basically an audible. Whereas if you talk about visual, anything you see and start feeling, or your stimuli of your brain generates an idea what kind of product it would have been, or maybe what kind of surface it could be, like a smooth or rough or rigid or anything like that. Similarly, after that is a tactile, where you can touch a surface, and there are different type of surfaces. Whatever you feel is through tactile. Then coming to the next one, which is we have discussed कि fabric texture किस किस चीज़ों पे depend करता है. We have discussed fiber content, yarn structure, fabric structure and finishes are the points जिसकी वजह से कोई भी fabric का texture develop हो पाता है, या तो fiber stage पे या fabric पे या फिर yarn stage पे. Last में finishes में भी एक option होता है कि आप texture को change कर सकते हैं. Then आज जो हम कर रहे हैं वो है impact of texture on garments, कि garments पे टेक्सचर का क्या इम्पैक्ट है. बेसिकली हम लोग इसके रोल की बात कर रहे हैं कि टेक्सचर का क्या रोल है. यूजुअली कलर वगैरह हम लोग देख ही रहे हैं, तो टेक्सचर का क्या इंपॉर्टेंस है. हम लोग ने क्या बात करी थी, एनीथिंग दैट यू सी इन द वर्ल्ड इज टेक्सचर. देयर इज नथिंग देयर इन द वर्ल्ड विच इज not
विच डज नॉट इंक्लूड टेक्सचर। ऐसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में जिसमें कोई टेक्सचर ना हो, चाहे हम लोग पानी की बात करें या फिर हम लोग किसी पर्दे की बात करें, दीवार की बात करें, मिट्टी की बात करें, आसमान में चीजों की बात करें, बर्ड्स का देख लें, ह्यूमंस को देख लें, प्लांट्स को देख लें, नेचुरल, मैन मेड, लिविंग, नॉन लिविंग, कोई सी भी चीज है उसमें टेक्सचर है ही है। तो हम यहाँ पे जब गारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो गारमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम टेक्सचर चेंज कर देते हैं। एक मेन चीज है, हम लोग सारे एलिमेंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि विजुअली क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी चीज का, मतलब देखने पे क्या इल्यूजन हो रहा है, तो हमने उसकी बात करी है। तो सिमिलरली हम लोग बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्सचर। तो बेसिकली क्या है, टेक्सचर्स के थ्रू आपका जो पर्टिकुलर गारमेंट है वो कैसा लगने लगेगा आफ्टर यूजिंग अ टेक्सचर। सो अगर हम ड्रेप की दो बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हमारा, एक तो ड्रेप हो सकता है, दूसरा है हमारा कलर परसेप्शन। ड्रेप क्या है, किसी भी चीज को कवर करना थ्रू फैब्रिक, उसको ड्रेप बोलते हैं। अगर मान लो मैंने ये दुपट्टा लगा रखा है तो इसको ड्रेप करना ही बोलेंगे, या जो भी लेडीज साड़ी पहनती है तो साड़ी को क्या बोलते हैं हम, ड्रेप करना। किसी भी चीज को सिलने के बजाय मतलब उसको बॉडी के ऊपर इस तरीके से कैसे वो फॉल हो रहा है, वो उसका ड्रेप है। तो हम जब बात कर रहे हैं ड्रेप की तो टेक्सचर कैसे होते हैं, तो यूजुअली जैसे शिफॉन फैब्रिक है, शिफॉन बहुत लाइट वेट फैब्रिक होता है और वो यूजुअली बहुत ज्यादा क्लिंजी या फिर एकदम सॉफ्ट फैब्रिक होता है। इसलिए तो एक तो ये क्या है, क्लिंज और फ्लो कर रहा है, साथ में इसके साथ जो एडजेक्टिव्स की हमने बात करी थी कि हर टेक्सचर का कुछ ना कुछ एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हम फील की बात कर रहे हैं। फील क्या है, भाव। तो भाव की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो शिफॉन में शिफॉन को देखकर हमारे को क्या फील होता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड हियर वी से दैट सॉफ्ट फेमिनाइन स्टाइल होती है शिफॉन की। यूजुअली आप फीमेल्स को ही पहनते हुए देखेंगे शिफॉन फैब्रिक, आप मोस्टली मेल्स को नहीं देखेंगे कि उन्होंने शिफॉन फैब्रिक वियर कर रखा है। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट मेन ऑल्सो वेयर शिफॉन, विच इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। अगर आपने देखा हो कि कुछ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जो हैं, उसमें मेल कैरेक्टर यूजुअली जब कोई इंडियन ओकेजन है तब वो लोग कुछ ऐसा वेयर करते हैं जिसमें शिफॉन या जॉर्जेट का यूज है, या फिर कोई और भी ओकेजन हो। बट इंडियंस का मैंने स्पेशली देखा है कि वो शिफॉन या जॉर्जेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि अगर मान लो उनकी बहुत स्लिम बॉडी है, उनको ट्रांसपेरेंट कुछ चाहिए, तो what they'll do is that they will wear something that is of the fabric which is chiffon or georgette which is transparent, and usually जो males के सलवार कमीज भी होते हैं उसके साथ में जो वो दुपट्टा रखते हैं साथ में, वो भी शिफॉन या जॉर्जेट का होता है। सो बेसिकली ज्यादातर फीमेल्स में देखेंगे आप सॉफ्ट होता है, फ्लोई रहेगा, और वैसे वाली सारी स्टाइल्स शिफॉन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। एट द वेरी सेम टाइम फैब्रिक ही है कैनवास, बट कैनवास का जो फ्लो है वो एकदम फ्लोई नहीं होगा, वो स्टिफ होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कैनवास प्रोवाइड्स फर्मनेस फॉर अ कैजुअल गारमेंट। किसी भी कैजुअल गारमेंट को फर्मनेस मतलब खड़ा कर पाए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो है मेरे हिसाब से कॉटन। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एक मेजर की हम लोग बात करें तो कॉटन जैसा कैनवास, कैनवास एक फैब्रिक भी होता है बेसिकली। आप अगर पेंटिंग करते होंगे तो उसका बेस फैब्रिक भी कैनवास होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली शर्ट वगैरह में जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, मेंस शर्टिंग में, वो हम लोग कैनवास फैब्रिक को ही यूज करते हैं। इससे क्या है, किसी भी फैब्रिक में फर्मनेस प्रोवाइड होती है। एट द वेरी सेम टाइम जो दूसरी बात हम कर रहे थे वो है कलर परसेप्शन की। हमने बात की ड्रेप की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कलर परसेप्शन की। कलर से बेसिकली क्या है, रफ टेक्सचर एब्जॉर्ब्स लाइट मेकिंग कलर्स अपीयर फ्लैट। अगर कोई बहुत लाइट कलर का कोई फैब्रिक होगा और वो रफ टेक्सचर का है तो वो आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बोल रही हूं मैं, रफ टेक्सचर है, ठीक है, और लाइट कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसका जो कलर्स हैं वो बहुत फ्लैट लगने लग जाएंगे। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, रफ टेक्सचर्स की।
एट द वेरी सेम टाइम अगर स्मूथ टेक्सचर है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो मतलब वो शाइनी लगेगा, मेकिंग कलर्स अपीयर ब्राइटर। शाइनी मैंने बोला अभी, ब्राइट दिखाने के लिए आप स्मूथ टेक्सचर को यूज करते हैं। और अगर आपको किसी चीज को मतलब थोड़ा डल दिखाना है तो आप रफ टेक्सचर्स का यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्मूथ टेक्सचर में आपने हमेशा देखा होगा सिल्क या सैटिन। सिल्क या सैटिन हम लोग कब पहनते हैं, या यूजुअली वेडिंग्स में या फिर कोई मेन ओकेजन है उसके टाइम पे हम लोग सिल्क या सैटिन का यूज करते हैं। इनफैक्ट कॉन्वोकेशन गाउन्स अगर आप देख लें या कुछ और भी ऐसी चीजें देख ले तो यूजुअली आप लोग देखेंगे कि सिल्क या सैटिन का यूज होता है। सैटिन एक्चुअली सिल्क से सस्ता होता है, इसलिए उसका एक ऑल्टरनेटिव है। वेरेज सिल्क इज द मेजर फैब्रिक विच इज शाइनी, लस्चरस, और ये ज्यादातर रॉयल्टी या लग्जरी को डिनोट करने के लिए होता है। सिमिलरली अगर हम रफ टेक्सचर की बात करें तो हम लोग कॉटन या वूल इन सबको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि रफ टेक्सचर के होते हैं। हाथ लगाने पे जो रफ लगे, देखने में जो रफ लगे, जो देखने में रफ लगेगा वो हाथ लगाने में डेफिनेटली रफ लगेगा ही। एट द वेरी सेम टाइम अगर हम स्मूथ टेक्सचर की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी कलर को क्या कर रहा है, ब्राइट कर रहा है। इसीलिए तो बोल रहे हैं सिल्क को वेडिंग्स के टाइम पे हम लोग इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि वो ब्राइटनेस को शो कर रहा है। अगर वहीं पे, क्योंकि ओकेजन्स में क्या है कि आपको आउटशाइन करना है ना, तो इस वजह से ये स्मूथ टेक्सचर का। Then coming to the next slide, creating visual effect with texture. टेक्सचर से कैसे आप किसी भी चीज का विजुअल इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई गारमेंट है सिंगल कलर का है, या फिर मान लो कि दो ही कलर्स हैं उसमें, आपने प्लेन कॉटन ले लिया या फिर आपने मसलिन फैब्रिक ले लिया, मलमल ले लिया, सिल्क ले लिया, सैटिन ले लिया, कोई सा भी। अब यूजुअली हम लोग जो काम करते हैं ना, आप प्लेन फैब्रिक से ही काम कर रहे होते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा चेंजेस क्या कर सकते हो कि उस पर आपने हैंड पेंट कर दिया या कुछ, बट उसके अलावा भी कई टेक्सचर देने के प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से आप उसका ओवरऑल लुक चेंज कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने मेरे टाइम पे रियलाइज किया जब हमारे यहाँ पर फैशन शो हो रहा था, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड अ डिजाइन वेयर शी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम इजिप्शियन कॉस्ट्यूम्स। तो द फैब्रिक दैट शी यूज्ड वाज cotton khadi fabric, and she dyed all the fabrics with different colors, and whereas she had put a hand painted design. So what was in my mind is कि भाई ये ना थोड़ा डल जा रहा है। कहने का मतलब है कि ठीक है हमने मोटिफ लगा लिया, वेल एंड गुड, पर क्या है कि हमारी जो फैब्रिक चॉइस थी वो थी प्लेन कॉटन खादी, तो उसकी वजह से अगर हम लोग रैम्प पे रात के टाइम पे देखें तो वो थोड़ा डल जा रहा था। तो आई हैड अ थिंक कि काश इसमें हम लोग कोई टेक्सचर डाल पाते। तो मैंने पूछा भी था, बट किसी वजह से हम लोग वो चीज को कर नहीं पाए थे इम्प्लाई। बट बात ये है कि उस चीज में भी एक हम टेक्सचर डेवलप कर सकते थे। कैसे कि जैसे ये आप देखेंगे पिक्चर, ये पाइनएप्पल के पिक्चर नहीं है, ये स्मोकिंग के पिक्चर है। मतलब बेसिकली एक फैब्रिक को उठाया गया है, उसको स्टिच करा गया है इस तरीके से कि वो ऐसा विजुअल दे रहा है। ये प्लेन फैब्रिक है, बस इसमें इसको उठाया इस तरीके से और उसमें थ्रेड से इसकी नॉटिंग करी गई, तो वो एक एम्बोस्ड इफेक्ट शो कर रहा है, बाहर उभरा हुआ डिजाइन शो कर रहा है। सिमिलरली ये अगर आप देखें, यूजुअली आपने कुशन्स वगैरह में ये देखा होगा, कुशन्स भी क्या है, प्लेन कलर के आ गए। तो डिजाइनिंग में जब हम ये 5 एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, हमेशा जब भी आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए अपना खुद का थीम का कुछ भी वर्क, चाहे वो होम टेक्सटाइल में हो, चाहे वो ग्राफिक्स में हो, चाहे वो गारमेंट्स में हो, आप अगर सारे एलिमेंट्स को या प्रिंसिपल्स को कंसिडर करके चलेंगे ना, होता क्या है कि हम लोग को पढ़ तो लिया बट आगे हम लोग यूटिलाइज नहीं करते उस चीज को। तो हमारे को क्या करना है, जब भी हम लोग कोई बोर्ड बनाएंगे ना, जब भी हम कोई थीम पे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कोई बोर्ड बना रहे हैं तो हमेशा हमें पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा कि हम सारे, यूजुअली क्या याद नहीं रह पाता कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आप क्या करो कि सारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को आप लिख लो कि भाई क्या लाइन होती है,
शेप कुछ होता है, टेक्सचर है कि कुछ है, कलर है। तो जब आप ये चीजें लिख लोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा जब भी आप अपनी डिजाइन बनाओगे कि हाँ लाइन इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है, शेप के हिसाब से मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, क्या मुझे परफेक्ट कलर इसके हिसाब से रखने चाहिए और किस तरीके का टेक्सचर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो आपका डिजाइन में आपको 5 चीजें और मिल सकती है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि म्यूजिक में मैंने पहले भी बोला था अपने पहले के लेक्चर्स में भी कि म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, सारे गामा पा वाला जो है 7 नोट से आप लैक्स और थाउजेंड्स और करोड़ ऑफ म्यूजिक आप जनरेट कर सकते हो। तो सेम तरीके से अगर आप एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को यूज करते हो, मतलब 5 एलिमेंट्स को अगर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप पता नहीं कितनी इनफाइनाइट डिजाइन आप लोग डेवलप कर सकते हैं। ये बेस है, इस बेस को चूज करके हम लोग नए नए डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं, एक अलग डिजाइन हमारा लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मेनली ये टेक्सचर्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे को एक आइडिया लगे रहे कि हम दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये भी देखिए तो ये एक शर्ट का ऊपर वाला पार्ट है जो कि फैब्रिक को पूरा ट्विस्ट करा गया है, कॉइल जैसा बना लिया और उसको इस तरीके से प्लेस कर दिया कि जाल जैसा पैटर्न आ गया। तो यूजुअली हो क्या रहा है कि एक अच्छे से चीज को प्रेजेंट करी गई है। सिमिलरली अगर आप ये देखें तो क्या है, चेक्स में इन्होंने सिलाई कर दी, लास्ट में इन्होंने ऐसे जैसे गैदर्स डाल दिए थोड़ा सा और उसके बाद में स्टिच कर दिया, तो वो क्या है, एक नया सरफेस पैटर्न बन गया। सिंगल कलर गारमेंट यूज टेक्सचर टू एड इंटरेस्ट इन डेप्थ, डेकोरेशन, पिन टकिंग, स्मोकिंग एंड गैदरिंग एम्ब्रॉयडरी। ये कुछ टेक्निक्स है जिसका अगर आपने यूज करा, जो कि हमने अभी पिक्चर्स में भी दिखाया, तो वो आपका डिजाइन ज्यादा अच्छे से निकल कर आएगा। वेरएज हम लोग इल्यूजनरी इफेक्ट की बात करें तो टेक्सचर कैन क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ नैरोनेस और फुलनेस। सारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कर क्या रहे हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, किसका, नैरोनेस या फुलनेस का। किसी भी चीज में डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो, कैसे, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन से। देन अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द सिलुएट्स गिविंग अ बल्की और स्लेंडर लुक। किसी भी बॉडी शेप को या फिर किसी भी सरफेस को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए आप ये वाले टूल्स को यूज कर सकते हैं। देन हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब आप ये डिजाइन्स देखिए, सिंपल ब्लैक व्हाइट कलर है, हो क्या रहा है, नीचे रफल्स डाल दिए, टेक्सचर प्रोवाइड कर दिया, पूरा डिजाइन चेंज हो गया। मतलब डिजाइन चेंज हो गया एज इन कि आपने स्ट्रेट स्कर्ट या गाउन या वन पीसेस देखे होंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ये पूरा डिजाइन चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर आप ये सेकंड वाला डिजाइन देखें, सिर्फ एक सिंगल कलर है, सिंगल कलर है, बट अगर ये नॉर्मल आप इतना स्ट्रेट दे देते कोई सेंस नहीं लगता उसका, इट वुड हैव बीन वेरी डल एंड वुड नॉट हैव एनी चेंज। बट because of these texture that they have provided, अभी अगर आप यहां देखेंगे बेसिकली तो स्ट्रेट लाइन, मतलब इन्होंने टक्स यहां पर प्रोवाइड कर दिए जो कि स्ट्रेट फॉर्म में है। उससे क्या है, कोई भी चीज यानी कि वर्टिकल लाइंस, हमने जो पहला वाला एलिमेंट पढ़ा था, वर्टिकल लाइंस आप लोग देख सकते हैं, और वर्टिकल लाइन से इल्यूजन आता है किसी भी चीज की लेंथ का। तो क्या हुआ, अपर बॉडी की लेंथ पूरा इंक्रीज हो गया, वेर एज ये वाला बॉडी, ये वाला पार्ट को आप अगर बड़ा भी दिखाना चाहें तो इन्होंने ऐसे रफल्स प्रोवाइड कर दिए जिससे कि उसमें एक वॉल्यूम आ गया, उस पर्टिकुलर एरिया में वॉल्यूम आ गया, मतलब बॉडी की लेंथ भी दिख गई प्लस वॉल्यूम भी आ गया, तो विच इज अ गुड पार्ट। सिमिलरली अगर आप ये वाला पार्ट भी देखें, प्लेन स्कर्ट है पर अच्छी किस वजह से लग पा रही है, ओवरलैप हो गया, यहां से एसिमेट्रिकल लाइन है प्लस यहां पे प्लीट्स प्रोवाइड कर दी। यहां पर अगर मान लीजिए आपका वेस्ट बल्कि भी है तो इतना बड़ा बेल्ट होने की वजह से वो पूरा अंदर दब गया, इट इज नॉट वेरी मच विजिबल। वेर एज क्योंकि ये प्लीट्स आ रही है और वो भी एसिमेट्रिकली, तो वो एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपकी आईज को और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को डेफिनेटली ऐड कर रहा है। सिमिलरली ये भी एक स्कर्ट है
जिसमें गैदर्स का यूज करा गया है और ऊपर एक दूसरे कलर का फैब्रिक है। बेसिकली इसमें कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है, तो इसमें कलर का भी यूज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट कलर्स का, ब्लैक का जस्ट अपोजिट कलर विच इज व्हाइट, और साथ में गैदर्स प्रोवाइड करी गई है जिससे कि डिजाइन अलग लग पाई है। सिमिलरली अगर शिफॉन फैब्रिक है, प्लेन है, यहाँ से जो स्किन है बहुत ज्यादा सी थ्रू हो सकती थी, पर क्योंकि इन्होंने गैदर्स या फिर ऐसे पूरा प्रोवाइड कर दिया तो इसकी वजह से स्किन उतनी ज्यादा विजिबल भी नहीं है पर विजिबल भी है। तो जो लोग यूजुअली इतना ट्रांसपेरेंट नहीं पहन सकते, इट इज द बेस्ट ऑप्शन to choose a chiffon fabric, manipulate it with the gathers, and you can wear it and just look good. So this was all for today, and in the next lecture we will discuss what are the rest part of texture and how it can be utilized to make a costume much better. Thank you so much for today.